Students, good morning. And now congratulations first of all after clearing your respective examinations of class 10th. So really very happy to see you all, not actually in front but at least through this camera or through the virtual mode. So now it's a pretty important turning point for your life. Why? Because now you need to choose the line which you feel like taking for the rest of your life. And guys, don't think it as a too much amount of burden on your head that whether I should be taking this line or that line. And I know guys, बोलना बहुत easy होता है but actually में जो उस time पे बंदा या बंदी उसको face कर रहा होता है वो बहुत difficult है. बिकॉज हर एक आदमी का एक अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन होता है, एक अलग अलग रेमेडी होती है आपके लिए. कोई अंकल बोलेंगे आप ये लाइन ले लो, कोई ये बोलेगा आप ये लाइन ले लो. सो इट बिकम्स अ टैड मोर बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज रादर देन लिसनिंग टू ऑल दैट ब्यूटिफुल वर्ड्स फ्रॉम अक्रॉस, वो भी सुनते रहो. व्हाट यू नीड टू डू इज एक्चुअली सी फॉर द नेक्स्ट डेज or next around say 7 days or 10 days or 15 days, because either way by the time I don't think that the schools are opening anytime soon. ये करीबन 15 दिन के अंदर even if you are able to see these videos, then you would be able to understand that what lies inside science, what lies inside commerce and what lies inside arts. Sir, will you be teaching you all the 3 lines? It's a kind of a surprise. So I'll be telling you all in the time to come. एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि बिफोर योर एग्जामिनेशन वी शुड बी एबल टू कंप्लीट अराउंड 2 and 3 चैप्टर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज वेल एज बायोलॉजी. वी वुड ऑल्सो ट्राई एंड कंप्लीट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वी विल ऑल्सो ट्राई एंड कंप्लीट some of the chapters in commerce, and I'll also try and complete some of the chapter in arts. Sir, how is this going to work? I am not telling you to, by the way, take science. I am not asking you to take commerce. You guys are free to choose whatever you feel like choosing. Even if you feel like taking arts or commerce or science, that's your choice. What I am only providing you with a lecture of that particular subject so that you will at least get an idea that what lies inside that subject. Will you be able to do that? Is it worth trying that much? That is your choice to see. Okay. So without wasting time, today we will be starting a lecture on physics. This is common across all the boards, whether it's a Maharashtra state board or a CBSE board or ICSE board, or ICSE is technically no more ICC now. So any of the board of India, this would be a common chapter because this is the most introduction or the most basic part which relates to the word or the world of physics. First of all, what is this particular line of physics actually going to tell you or going to offer you? Physics means physical. That means you are not supposed to go and enter inside that particular atom or molecule to see how the things are running, but what you are going to see is what is the reason behind this particular thing to happen in such a way. So you would be able to find out the physical aspects of everything, something which you can see, feel, hear, touch. अब उन चीज़ों के बारे में बात करोगे. ट्यूबलाइट चालू हो गया, जब मैंने स्विच ऑन किया, क्यों हुआ चालू? A fan is moving in this direction. Why is only fan moving in this direction? When I am talking about the units, then what do you mean by the word units? Why is measurement so important for us? क्यों हम लोग इतने formulas की बात कर रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है? ये सारी की सारी चीज़ें. So that will be all going in the part of physics. Now let's talk about the word first of all. And of course guys, remember, इसके पहले भी एक और chapter है, but that's a pretty theoretical chapter. That's not even a chapter because उसमें कुछ scientists के name दिए हुए हैं and उनके remarkable achievements हैं, which of course we will also discuss, but I will discuss in this chapter. जब हम करते हुए जाएंगे तब तक आपका वो वाला chapter भी already हो जाएगा इसी में. So do not worry, I am not going to skip any single thing. You can see everything whatever you feel like from any of the reference book, whatsoever you feel. Okay. Now let's talk about the word units and measurements. Now what do you mean by units and why are units even required for you? I'll try not to make the lecture more than around 30-35 minutes, but every single thing what I am saying or doing on the board, you can note it down, take a snapshot, screenshot, download the lecture, do whatever you feel like doing. Okay. But they are very, very important for you. What do you mean by the word unit?
A unit is that particular set of standard measurement or a set of standard quantity which is being accepted everywhere as a reference. मतलब क्या हुआ? See guys, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया के अंदर एंड इवन अब्रॉड भी आप जब जाओगे तो अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग कंट्रीज होते हैं, हर जगह पर यूनिट अलग है. सो इन दैट केस if you manage to go somewhere where the same language is not being spoken, it becomes very difficult for you to say something in your native tongue. आपकी घर वाली लैंग्वेज नहीं चलती. For example, when I came to Maharashtra, because I never actually belonged to Maharashtra previously, so जब मैं महाराष्ट्र में आया, it became a bit more difficult for me because जब मैं नॉर्थ से हूँ तो वहाँ पर कई चीज़ों को बहुत जनरली बोला जाता है. लाइक एक पाव दे देना, मतलब एक पाव सामान दे देना, मतलब एक पाव दे देना, मतलब एक पाव मीन्स 250 grams. नाउ दिस एक पाव इज एक्चुअली द नेटिव टोन. नेटिव टोन मीन्स वर्नाक्युलर लैंग्वेज. वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब जो मदर आपकी टंग होती है, आप उसमें कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हो. सो दैट इज़ दैट. बट मालूम पड़ा जब मैंने उनको एक पाव कुछ सामान देने को बोला, उसने मेरे को एक पाव उठा के दे दिया. उसने बोला ये लो एक पाव ले लो, बड़ा पाव वाला पाव. Now that's a bit funny, I know. But from that I came to know that why is this word unit actually so important. Because यदि आप US जाओगे, उल्लासनगर नहीं, America as in US, United States, if you go to US, they'll also be using the same weights, same measures like the kg, kilogram, meter, okay, watts, something or those particular set values or standard values which are used as a reference for measurement will be known as what? Units. But why do we need to measure things, sir? आम तौर में क्लास 10th के पहले जब भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स वगैरह वाला पार्ट आप जब पढ़ते हो तो उसमें कई बार हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, अरे सर मेरे मार्क्स ना बहुत ज़्यादा आए हैं. एंड मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को डांटता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय बहुत ज़्यादा आए हैं? सर मतलब बहुत अच्छे आए हैं. आपके हिसाब से अच्छे हैं बट मेरे हिसाब से तो अच्छे नहीं हैं. बिकॉज सपोज करो एक कोई स्टूडेंट है हु इज़ बेयरली मैनेजिंग टू पास एंड ही गेट्स अराउंड 60 मार्क्स. सर मेरे 60 मार्क्स आए हैं सर, व्हाट आर यू सेइंग? फॉर मी ही हैज़ डन ट्रेमेंडसली वेल, बट फॉर मी आई एम स्टिल नॉट हैप्पी, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. आई वॉन्ट हिम टू रीच एट अराउंड 90-95, राइट? सो दैट मीन्स that I need to measure his improvement because ultimately his improvement will contribute towards my improvement. यदि वो student और अच्छा improve करेगा मतलब मैंने अच्छा पढ़ाया. So like that. So that is the reason why we need to measure things. Now when I am talking about measuring things, measuring के लिए या measurements के लिए मुझे एक set reference चाहिए होता है जिसका support लेकर के मैं चीज़ों को compare कर पाऊँ. And this is what is known as what? Measurements and units. Now according to the IUPAC, which is you know the SI system or the standard system of international units, उनके हिसाब से उन्होंने कुछ दो तरह के यूनिट्स बोले हुए हैं. वन इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट, fundamental units, and another is known as derived units. Remember guys, आज के 30 minutes के लेक्चर में काफ़ी कुछ हो चुका होगा आपका, trust me, just be with me on the lecture floor. What do you mean by fundamental unit? Fundamental units are those units which are what? Which does not read any reference from some other terms. Fundamental units are those units or those particular measurements which do not require help or support from any other term for their definition. फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब वो यूनिट्स होगा जिनको बताने के लिए आपको किसी और चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं लगेगी. सो फंडामेंटल यूनिट्स जो SI के जो यूनिट्स होते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, इन्होंने इसको 7 फंडामेंटल यूनिट्स में डिवाइड करा हुआ है. सो फंडामेंटल यूनिट्स 7 तरह के होते हैं. कौन कौन से वो 7 टाइप्स हैं? सो लेट अस स्टडी ऑल दो 7 टाइप्स. द फर्स्ट वर्ड इज मास. द सेकेंड इज, मैं फिर सबकी यूनिट्स लिखता हूँ पहले. सेकेंड इज लेंथ, LENGTH, लेंथ. थर्ड इज टाइम. फोर्थ, I'll tell you each and everything, don't worry. Fourth is current or electric current.
Fifth is luminous intensity. Luminous intensity. Sixth is amount of substance. Amount of substance. And seventh is temperature. These are the 7 fundamental units. So what do you mean by these fundamental units? ये basically units नहीं है, ये quantities हैं. So remember, first of all, there are two different things. One is known as fundamental quantity. तो ये है वो 7 fundamental quantity, और अभी मैं इनकी units भी लिखूंगा तो वो हो जाएंगे उनकी 7 fundamental units. Now what do you mean by 7 fundamental units? मास को बताने के लिए किसी और चीज़ की हेल्प नहीं लेनी कि मालूम है मास का मतलब वो जो टाइम से जब ये चीज़ डिवाइड करो तो ये आता है. सो दैट मीन्स मास. ओके, सो मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड एज kg, विच इज किलोग्राम. किलो मीन्स 1000, बट उस पर बाद में आते हैं. मास मीन्स kg. सो मास इज द फंडामेंटल quantity while kg is the fundamental unit. Length. Length is all across the world accepted as meter or meters. M. So that is the fundamental unit, fundamental quantity. Time. Time is in seconds. Okay. So ध्यान रखना जिस रंग से मैं जो लिख रहा हूँ इसी रंग से आप लोग भी लिखते हो. So it's kg, it's m, it's s. Okay. Current is ampere. A, ampere. Luminous intensity. Now what is current? Current can be defined as the amount of charge per unit time. Okay, अभी वो सारा का सारा आ ही जाएगा, so don't worry. Time is always measured in seconds. Luminous intensity का मतलब कितनी लाइट कितने एरिया में पड़ रही है. Light means what? कितना लाइट की इंटेंसिटी, कितनी किसी जगह पर कितनी ब्राइटनेस है, कितना बाय द वे वहाँ पर लाइट है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए व्हाट डू वी डू? वी नीड, हम ऐसे नहीं बोल सकते ना इस रूम में ज़्यादा लाइट है इस रूम में कम लाइट है. एक बार मैंने अपने टीचर से आर्ग्यूमेंट करा. मैंने बोला मैम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई हैव ऑल्सो गॉट अ ट्यूबलाइट बैक एट माई होम एंड द मैचेस विच आर प्लेड इन डे एंड नाइट मैचेस, वहाँ पर भी वाइट लाइट होता है. सो दैट मीन्स दोज वाइट लाइट्स एंड माई वाइट लाइट्स आर सेम. एंड समझ जाओ कि मैम ने क्या किया होगा उसके बाद. सो नॉट टू से, बट नाउ मेरी एक्चुअली में गलती नहीं थी, बट मैम ने देन मुझे समझाया दैट प्लीज़ अंडरस्टैंड द क्वांटिटी ऑफ लाइट विच इज़ फॉलिंग ऑन द टेबल. जो आपके ट्यूबलाइट दे रहा है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द फ्लड लाइट्स और द फ्लड लाइट्स विच आर being parked at the stadium. So the quantity which we measure or the quantity which we use to measure this difference will be luminous intensity. Lumen is the unit of so called light. Okay, luminous intensity और इसकी जो unit होती है that is candela. CD. So I am just writing units, बाद में इनके नाम भी लिख दूंगा. Candela, C-A-N-D-E-L-A, candela. Candle से मतलब नहीं है, named after the person Candela. Okay. Then comes the word amount of substance. ये आप लोगों ने already 9th में पढ़ा होगा and it will known as mole. Mole. Okay. Amount of substance मतलब कितनी चीज़ कितनी quantity में है, that is mole, M-O-L. Then comes the word temperature. Temperature is not measured in degrees Celsius, though it is measured in degrees Celsius, but the SI unit which is accepted all across the world is Kelvin. And this Kelvin is a fundamental quantity and that's the reason why इस पे कभी भी डिग्री का साइन नहीं बनता. आप देखोगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपके थर्मोमीटर्स में होता है, बट केल्विन हमेशा ऐसे ही शो करते हो. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. सो मास जैसे मैंने बताया केजी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किलोग्राम. देन दिस इज मीटर. कई बार इसको कई जगह पर स्पेलिंग METRE भी लिखते हैं, बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन. देन कम्स द वर्ड सेकेंड्स.
सो गाइज प्लीज SEC करके मत लिखना, 11th के अंदर टीचर इज गोइंग टू गिव यू रॉन्ग फॉर दैट। A stands for ampere, CD stands for candela, mole stands for of course guys mole, and K stands for Kelvin, named after the scientist Kelvin, and इन्हीं पर एक स्केल बनती है which is known as Kelvin scale. Okay, now these are the 7 so called what, the fundamental units and the fundamental quantities. इसके अलावा 2 और क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, वो भी फंडामेंटल में ही आता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। गाइस काइंडली चेक द स्पेलिंग, आई थिंक यहाँ पर E या A होगा, चेक कर लेना एक बार। नाउ सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से होंगे? 2 होते हैं। वन इज द प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज द रेडियंस, और इसको जो सिंबल होता है वो RAD करके यूज करते हैं, और जो लिखते हैं दैट इज रेडियन। अब आप बोलोगे ये क्या है? अभी जब एंगल आएंगे आपके, मतलब इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो आई विल टेल यू दैट व्हाट इज दिस रेडियन। देन कम्स सेकेंड इज सॉलिड एंगल, solid angle which is known as steradian. Okay, now एंगल नॉर्मली आप जानते हो कि जब भी कभी कोई भी 2, सपोज कर लो ये लाइंस हैं आपके पास में और ये एक दूसरे से एक एंगल पर है, आमतौर पे हम अभी तक इसको किस में मेजर करते थे? इन डिग्रीज में, बट आज के बाद में हम इसको डिग्रीज में मेजर नहीं करेंगे, हम किस में मेजर करेंगे? रेडियंस के अंदर। डोंट वरी, ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा मैथ्स का। ओके, बट एनीवे लेट्स कम बैक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव्ड क्वांटिटीज? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which depend on fundamental quantities for its definition. Derived quantities वो होते हैं जो अभी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है अपनी डेफिनेशन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो मैंने एक वर्ड बोला, द वर्ड फोर्स। सो यू नो दैट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कुछ याद आया? और सिंपल, F इज इक्वल्स टू मा, करेक्ट। एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन व्हाट? टाइम। सो इफ यू कैन सी, वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, बट ये किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे और टाइम पे। दैट मीन्स वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस एज वेल एज ऑन टाइम. So it cannot be a fundamental quantity because it needs two fundamental quantities for its derivation, and that's the reason why velocity will be a derived quantity. Now अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज नोन एज डायमेंशन फॉर्मूलाज. हमेशा ध्यान रखना है जो मास है आज के बाद में इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं डायमेंशन के हिसाब से, विच इज नोन एज m. अभी केवल आपको ये देखना है, जैसे ही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा आई विल टेल यू व्हाट इज दैट. सो मास को आप शो करोगे विद कैपिटल M से. ये इसकी यूनिट नहीं है, यूनिट का सिंबल यही है. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला और द डायमेंशन सिंबल. लेंथ को हम शो करेंगे विद दिस L से, ऑफ कोर्स ब्रैकेट बनाना पड़ता है. टाइम को शो करेंगे T से. करंट को शो करेंगे A से. आप चाहो तो I से भी शो कर सकते हो. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को शो करते हैं CD से. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम शो करते हैं मोल से. एंड केल्विन को हम ऑफ कोर्स K से. राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आखिर डायमेंशन फॉर्मूला किस काम में आता है. गाइस ये डायमेंशन फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स रेडियन को RAD से ही करेंगे, ब्रैकेट लगा देना, और स्टेरेडियन को स्टेरेडियन से. लेट्स अंडरस्टैंड वेयर डू वी यूज दिस डायमेंशन फॉर्मूला एंड व्हाई आर वी यूजिंग दिस. सपोज करो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा वेलोसिटी. अब किसी ने बोला फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम.
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ जब भी मैं कभी बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या शो करूंगा? L, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली लेंथ का मेजरमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया उसने, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डायमेंशन फॉर्मूला L का, और टाइम के लिए कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला यूज करूंगा? T। तो ये आ जाएगा नीचे L अपॉन T, और दिस विल बी इक्वल्स टू L T माइनस 1। सर ये माइनस 1 कहाँ से आया? जब ये T ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम L T माइनस 1। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सपोज करो मैंने यहाँ पर लिख दिया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट किसी ने आपसे पूछा, लेट मी रब दिस, सो किसी ने आपसे पूछा दैट व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन can be shown by the simple word velocity upon time। आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बोलते हो? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अंदर क्या लिखोगे? वेलोसिटी के अंदर आप लिखना स्टार्ट करोगे एज क्या आया था फॉर्मूला? एल टी माइनस 1। तो वेलोसिटी की जगह पर लिख दो एल टी माइनस 1, और टाइम की जगह पर क्या लिखोगे? t। सो दिस इज गोइंग टू बिकम L T माइनस 2। आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट पर। ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अब किसी ने आपको बोला फोर्स का निकालने के लिए, सो फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज योर मास ओवर हियर? मास को किससे शो करूंगा? m से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आया था अभी? L T minus 2. So answer is going to be M L T minus 2. That's all. मान लेता हूँ एक और फॉर्मूला लेता हूँ। लेट अस से सपोज किसी ने बोला वर्क का निकालो। सो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस? फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? M L T minus 2. So let's apply M L T minus 2. And what is distance? Distance को किससे मेजर करोगे? डायमेंशनली L के अंदर. So let's apply L over here. So फॉर्मूला क्या बन जाएगा? L 2 बार है तो यहाँ पर मैंने कर दिया M L square T minus 2. This is the formula of what? Work. So like this you can define n number of formulas whichever you feel like according to your own way. So what are we going to do tomorrow? Tomorrow we are going to of course do a lot of dimension formulas, and post that आपके पास में first JEE मेंस या CET या नीट की पहली शीट मैं आपको अपलोड कर दूंगा on the group. So today we will be forming a group of course on WhatsApp, and tomorrow we will be say uploading a sheet on the group so that everybody can solve it. And guys don't think that sir आपने ग्रुप बना दिया है तो now we will be joining your coaching or we won't be joining. This is guys completely, वैसे भी YouTube पर है तो either way you can see it and download it, no problem. What I am simply saying it, at least आपको आइडिया लग जाएगा कि साइंस वाली ब्रांच में क्या है, कॉमर्स में क्या है, आर्ट्स में क्या है. That's all. Okay. So guys do not take tension from any point at all. उतनी ही बातें सुनो जितनी ज़रूरत है आपको. So that's all a sincere wish from my side. All the best guys. Enjoy. Cheers. And keep on loving your parents because they are the best people on earth. Thank you guys. See ya. Ciao for now.